In previous lecture, I explained about admission of a partner and I explained journal entries at the time of admission of a new partner. Now we have to learn about the treatment of goodwill. So before this, means there is a need to understand what is the meaning of goodwill. In a simple language, goodwill, it is a reputation. But goodwill depend upon behavior of that person, location of your business, your capital, your business. Means goodwill, it is a sum of such and type of factors. When you sum up all that, then you can say the goodwill of a person. We can easily understand by taking a simple example. रतन टाटा. रतन टाटा का नाम ही काफ़ी है, ऐसा सभी लोग बोलते हैं. ठीक है, मतलब उनके बारे में कोई क्वेश्चन क्रिएट नहीं कर सकता है. और आप थोड़ा विचार कर सकते हो. वी कैन थिंक अबाउट दैट. इफ सपोज टाटा ज्वाइन with our business, so automatically our profit, means the profit of business augmented. ठीक है, speedily. Means I have no confusion about that person. ठीक है. So by this example you understand the meaning of goodwill, reputation, prestige of that particular person. But for this chapter, I explain treatment of goodwill in relation to admission of a partner. ठीक है. And I explained in previous lecture, the new partner, suppose the consent received from existing partner for a new partner. So at the time of admission, there is a need to bring capital. So if a new partner come with capital, it means that he will get a right on assets of that partnership. And second is, what happened at the time of admission? The old partners, mean existing past partner, sacrifice their ratio for new partner. So they want compensation from a new partner. So their sacrifice may be compensated by giving goodwill to them. That's why this goodwill, means treatment of goodwill, is very important at the time of admission. Means normally goodwill, means when I think or when we think about the goodwill for admission purpose, तो क्या होता है, नया पार्टनर, मतलब दो कंडीशन होती है. नया पार्टनर गुडविल कैश में लाएगा. ठीक है, एक हो सकता है. अब ये लाएगा नहीं लाएगा डिपेंड अपॉन कंसेंट ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर्स. यह बात ध्यान में रखना. ठीक है. दूसरा बात ऐसा है कि इफ सपोज ड्यू टू मीन्स बाय दैट सम फाइनेंशियल प्रॉब्लम, it is not easy for that new partner to pay goodwill in the form of cash. ऐसा भी हो सकता है. मतलब फिर दो प्रॉब्लम, मतलब दो एक फैक्टर हो गए यहाँ पे. ऐसा कि एक तो गुडविल कैश में लाएगा न्यू पार्टनर, या तो कैश में गुडविल नहीं लाएगा. वो अब नहीं लाएगा, लाना तो पड़ेगा ही, ये तो बिल्कुल मतलब मस्ट है. फिर नहीं लाएगा तो फिर क्या उसमें एक उपाय है. उपाय ऐसा है, existing partners can raise the amount of goodwill. ठीक है, in relation to new partners share. यह एक रहेगा. मतलब रास्ता क्लियर हुआ कि गुडविल की ट्रीटमेंट दो मतलब कैटेगरी में डिवाइड कर दिया. ठीक है, इफ गुडविल ब्रॉट इन बाय न्यू पार्टनर इन द फॉर्म ऑफ कैश, if goodwill
not paid by new partner in the form of cash। ठीक है, यह एक बात ध्यान में रखना है। अब इसी को जर्नल एंट्री बनाने के लिए मैंने यहाँ पे कुछ मतलब छोटे प्रॉब्लम्स क्रिएट किए और वह एक्सप्लेनेशन करने के लिए यानी जर्नल एंट्री पास करने के लिए बहुत आसान हो जाएगा। आई बात समझे? अभी अपने को एंट्री जो पास करना है, पास जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ मतलब पार्टनरशिप। आई बात समझे? इसमें अपने को वो पास करना है। तो पहली कंडीशन ऐसा है कि गुडविल ब्रॉट ठीक है इन कैश यह एक पहली कैटेगरी है। इस लेक्चर में सिर्फ मैं फिर एक ही कैटेगरी का एक्सप्लेनेशन करूंगा, इफ गुडविल ब्रॉट इन कैश बाय अ न्यू पार्टनर। ठीक है, पहला एक प्रॉब्लम तैयार किया मैं समझने के लिए कि राम एंड कृष्णा बोथ आर द पार्टनर्स ऑफ ए एग्जिस्टिंग पार्टनर्स, देयर शेयरिंग रेशियो इज 4:3। ठीक है, बलराम is admitted as a new partner and he bring goodwill that is 7,000। ठीक है, and new ratio of that firm is 1:1:1 and equal हो गया। तो फिर से मैं एक्सप्लेन करता हूं, राम एंड कृष्णा both are the partners, their profit sharing ratio is 4:3। ठीक है, and he admitted Balram as a new partner and he put a condition, come up in a partnership with a goodwill of rupees 7,000. He agreed for that, and by that their existing sharing ratio it is changed because both the partners Ram and Krishna sacrifice for Balaram। ठीक है, by that their ratio it is changed, that is equal। ठीक है, अब अपन को एंट्री पास करना है। तो क्या होगा, पहला एंट्री देखिए, वेरी इजी। बलराम ब्रॉट गुडविल इन कैश 7,000। ठीक है, तो कैश कम्स इन योर बिजनेस एंड इट इज पुट और डिपॉजिटेड इन बैंक। ठीक है, सो बैंक अकाउंट डेबिटेड, बैंक अकाउंट डेबिटेड। ठीक, टू गुडविल अकाउंट। आई बात समझे? बेस अमाउंट इज 7,000। नरेशन लिखना रहा मुझे तो मैं लिखूंगा गुडविल ब्रॉट इन कैश बाय बलराम। नाम लिखा तो भी चलेगा, नहीं लिखा तो भी चलेगा। आई बात समझे? ठीक है, अब आपको सेकंड क्या करना है, इफ गुडविल ब्रॉट इन बाय न्यू पार्टनर इन कैश, immediately whatever amount received to partnership as goodwill immediately credited to old partners capital account, credited to in their old profit sharing ratio। But if new profit sharing ratio, if it is given in problem, so you have to credited that received goodwill in the form of sacrificing ratio। सैक्रिफाइसिंग रेशियो में आपको गुडविल क्रेडिट करना पड़ेगा, ख्याल में रखना। देखिए बहुत ही सिंपल है, सिंपल यानी ऐसा, मैंने आपको यह बताया कि गुडविल कैश में लाया। आई बात समझे? लाने के बाद मैंने एंट्री पास किया, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू गुडविल अकाउंट। ठीक है, यह एक एंट्री पास हो गई। अब मैंने बताया आपको कि यह जैसे ही गुडविल कैश में लाया तो आपने उसको एग्जिस्टिंग पार्टनर्स में क्रेडिट कर देना है।
उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। लेकिन अगर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया रहा तो आपने उसको सैक्रिफाइसिंग रेशियो में क्रेडिट करना है, बरोबर है। बस इतना सिंपल है। अब मैं जो अमाउंट मिला गुडविल वह क्रेडिट कर देता हूं। तो एंट्री करूंगा मैं अभी यहां पे गुडविल अकाउंट डेबिटेड, गुडविल अकाउंट डेबिटेड टू राम अकाउंट एंड टू कृष्णा अकाउंट। आई बात समझे? ठीक है, इमीडिएटली बिल्कुल क्रेडिट कर देना है आपने। अब यहां पे मुझे नरेशन लिखना पड़ेगा, गुडविल, ठीक है ना, गुडविल credited in their sacrificing ratio, आई बात समझे? सैक्रिफाइसिंग रेशियो, ठीक है, गुडविल क्रेडिटेड इन देयर सैक्रिफाइसिंग रेशियो। मैं अभी यहाँ पे कैलकुलेट करके बताता हूँ आपको, ठीक है ना। देखो पहली एंट्री तो समझ में आएगा, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू गुडविल अकाउंट, कि उसने बैंक मतलब कैश में गुडविल लाया था। आई बात समझे? अब अपने को सैक्रिफाइसिंग रेशियो फाइंड आउट करना है। आई बात समझे? ठीक है, अब सैक्रिफाइसिंग रेशियो अगर फाइंड आउट करना है तो क्या करना है? सैक्रिफाइसिंग रेशियो, आई बात समझे, इज इक्वल्स टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। आई बात समझे? न्यू रेशियो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज इक्वल्स टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। आई बात समझे? ठीक है, इन दिस प्रॉब्लम योर ओल्ड रेशियो दिस इज 4:3। आई बात समझे? ठीक है, इसको मैं रब कर देता हूं अभी फिलहाल, ठीक है। अभी ओल्ड रेशियो जो है, ओल्ड रेशियो 4:3 of Ram and Krishna. So you can easily explain this. Ram is equals to 4/7 and Krishna is equals to 3/7. ठीक है ना। ये कैसा फाइंडिंग करना है आपने? 4 + 3 is equals to 7। आई बात समझे? ठीक है, देन न्यू रेशियो इज इक्वल्स टू, ठीक है ना। तो आप नाम भी लिख सकते हैं उसका, 1:1, ठीक है ना। यानी इसका टोटल हो गया 3। आई बात समझे? मतलब 1/3, ठीक है, राम, ठीक है, 1/3 मीन्स कृष्णा एंड बलराम 1/3। आई बात समझे? ठीक है, अब इसको अपने को इस फॉर्मूले में रखना है, ओल्ड रेशियो राम, तो मुझे सैक्रिफाइस निकालना है, ठीक है। किसके लिए सैक्रिफाइसिंग फाइंड आउट करना है मुझे? राम सैक्रिफाइस। तो मैं यहां पे लिखता हूं राम सैक्रिफाइस। आई बात समझे? फॉर्मूला तो बता दिया मैंने आपको, राम सैक्रिफाइस। तो राम्स ओल्ड शेयर 4/7 ठीक है, माइनस न्यू मीन्स यू आर 1/3, राम 1/3। आई बात समझे? ठीक है, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है और एलसीएम भी लेना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो 7 3 21 हो जाएगा। आई बात समझे? 21, ठीक है। 4 × 3 12, ठीक है। 7 1 7। आई बात समझे? ठीक है, अब इसको अपन सबट्रैक्ट करवा देते हैं, यानी 5 आएगा, 5, ठीक है। दूसरा कृष्णा
कृष्णाज सैक्रिफाइस इज इक्वल्स टू, ठीक है, 3/7 लिख के रखा है मैंने, 3/7 माइनस 1/3, आई बात समझे, 1/3, ठीक है, इज इक्वल्स टू अगेन 7 3 21, ठीक है, 3 × 3 9, 3 × 3 9, ठीक है, माइनस 7 1 7, ठीक है, इज इक्वल्स टू, ठीक है, 2, ठीक है, मतलब ये हो गया, आई बात समझे, मतलब तुम्हारा आंसर जो आ गया अभी सैक्रिफाइसिंग रेशियो वो आ गया 5:2, आई बात समझे, 5:2 ऐसा कैलकुलेट करना, ठीक है, बार बार रिपीट कर मतलब एक्सप्लेन नहीं करूँगा इस प्रॉब्लम में अपने सैक्रिफाइसिंग रेशो कैसा फाइंड आउट करना है, क्योंकि इट इज़ अ वर्किंग नोट आल्सो एंड इट इज़ यूज मीन्स यू हैव टू मेड एक्सप्लेनेशन इन ईच एंड एवरी प्रॉब्लम, ठीक है ना, क्योंकि इस पे मार्क्स भी रहते हैं, इसीलिए एक्सप्लेन करने का तरीका है यह कि हाउ यू कैन फाइंड आउट द सैक्रिफाइसिंग रेशियो। सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज इक्वल्स टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ठीक है, old ratio in this problem is 4:3, so 4 + 3 is 7, Ram is equals to 4/7 and Krishna is equals to 3/7, ठीक है, न्यू रेशियो दैट इज 1:1:1, सो 1/3 1/3 1/3, ठीक है, राम सैक्रिफाइस बहुत ही आसान तरीका है, 4/7 माइनस 1/3, ठीक है ना, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देना, 7 3 21, ठीक है, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, 4:3 12, 7:1 7, 12 minus 7 that is your 5, then 3/7 minus 1/3, ठीक है ना, 21, 3 3 9, 7 1 7, ठीक है, 2/21, so your sacrificing ratio is 5:2। अब इस 5:2 में आपको वह जो गुडविल उसने लाया था वह आपको क्रेडिट करना है, आई बात समझे, ठीक है, तो अपन उसको क्रेडिट फिर से जर्नल एंट्री अपन लिख लेंगे। देखो मैंने क्या बोला था, इमीडिएटली क्रेडिटेड दैट गुडविल, सो गुडविल अकाउंट डेबिटेड टू, ठीक है ना, राम अकाउंट, ठीक है, और टू कृष्णा अकाउंटर, और आपका सैक्रिफाइसिंग रेशो आया था 5:2, ठीक है ना, मतलब यहाँ पे लिखा था मैंने 5:2। अब इसको एक्सप्लेन करूँगा तो यह 5/7 आएगा और 2/7 आएगा, आई बात समझे, ठीक है, तो समझने के लिए यहाँ पे लिख के देता हूँ 5/7 2/7, आई बात समझे, 5/7 2/7। उसने गुडविल लाया था 7,000, 7,000, ठीक है, अब 7,000 अपने को इसमें डिवाइड कर देना है, तो इंटू 7,000 समझने के लिए यहीं लिख के देता हूँ, 7 1 7, मतलब 5,000 आएगा, ये क्रेडिट हुआ 5,000, आई बात समझे, ठीक है, फिर इसको मल्टीप्लाई कर दो 7,000 और 2,000, सिंपल हो गए 2,000, आई बात समझे, ठीक है, इसी वजह से एक ख्याल में रखना, इफ goodwill brought in by new partner in the form of cash, so cash account means bank account debited to goodwill account, and then goodwill it is credited to existing partners capital, ठीक है, in their old or sacrificing ratio. If new profit sharing ratio it is not given, so you have to credited that amount of goodwill in old ratio, otherwise in the form of sacrificing ratio, आई बात समझे, ठीक है। दूसरा लेते हैं, A and B are the partners, their profit sharing ratio that is 3:2, ठीक है, C admitted for 1/4 share, ठीक है, entirely from C, इसका मतलब ऐसा हुआ कि C को जो एडमिशन दिया है तो both are means consent received by A and B for giving admission to C for 1/4 share, लेकिन क्या हुआ, अब इसमें क्या बताया मैंने कि entirely from C, मतलब ऐसा हुआ
यह मतलब गलत हो गए, एंटायरली फ्रॉम बी कर देते हैं, ठीक है, एंटायरली फ्रॉम बी, बी के पास से लिया उसने, ठीक है, मतलब ऐसा हुआ बी ने ही सैक्रिफाइस किया सिर्फ सी के लिए, ऐसा उसका मीनिंग निकलेगा, बरोबर है। और उसने जो ही ब्रिंग्स 6000 इन टर्म्स ऑफ कैश, गुडविल उसने कैश में ही लाया, इसी वजह से अपन क्या करेंगे, गुडविल तो उसने कैश में लाया, ठीक है, डिपॉजिटेड इन बैंक, सो बैंक अकाउंट डेबिटेड, बैंक अकाउंट डेबिटेड बरोबर है, टू गुडविल अकाउंट, गुडविल अकाउंट, ठीक है, हाउ मच अमाउंट ब्रॉट इन 6000, ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू गुडविल अकाउंट। अब मैंने क्या बताया आपको कि एंटायरली मीन्स यह जो शेयर है उसने किसके पास से लिया, बी के पास से, इसी वजह से जैसे फर्स्ट एग्जांपल में मैंने इस गुडविल को दोनों में सैक्रिफाइसिंग रेशियो में क्रेडिट किया था, अब यह मैं दोनों को नहीं दूंगा क्योंकि इस प्रॉब्लम में सैक्रिफाइस सिर्फ बी ने ही किया है, इसी वजह से व्हाट एवर गुडविल ब्रॉट इन बाई सी इन दिस फर्म, ठीक है ना, इट इज क्रेडिटेड टू बी पार्टनर ओनली। आई बात समझे, इसी वजह से सेकंड एंट्री में पास करूंगा गुडविल अकाउंट डेबिटेड, गुडविल अकाउंट डेबिटेड टू, ठीक है, बीस कैपिटल अकाउंट, बीस कैपिटल अकाउंट दैट इज 6000। आई बात समझे, 6000, ठीक है, ऐसा इसका मतलब हो गया। पहले प्रॉब्लम में मैंने दोनों को मतलब क्रेडिट करवा दिया, इसमें सिर्फ बी ने सैक्रिफाइस किया था, इसी वजह से पूरा गुडविल का अमाउंट मैंने बी को ट्रांसफर कर दिया। नरेशन लिखना भी रहा, बीइंग गुडविल ब्रॉट इन बाई, आई बात समझे, ठीक है, इन कैश, ये लिख डालने का, गुडविल क्रेडिटेड टू बीस कैपिटल अकाउंट, सिंपल हो गए, ठीक है। अब एक फिर से दूसरा लेते हैं, राम एंड रहीम बोथ आर द पार्टनर्स, देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हियर 5:4, ठीक है। अशोक इज एडमिटेड एज अ न्यू पार्टनर, ही ब्रिंग गुडविल 5400, ठीक है, गुडविल ऑलरेडी अपीयर्स बिफोर एडमिशन ऑफ अशोक दैट इज 9000। आई बात समझे, पहले लेक्चर में बोला था कि जो बैलेंस शीट है अपने पार्टनरशिप की, उस बैलेंस शीट में इस प्रॉब्लम में 9000 रुपए गुडविल उनकी है, और मैंने समझाया था कि इसका फायदा मैं न्यू पार्टनर को नहीं दूंगा, जो भी पास्ट टेंस है, पास्ट टेंस में कैपिटल इन दोनों का था, इसी वजह से उसका बेनिफिट या तो लॉस उन दोनों को ही मिलेगा, ये नए पार्टनर का कोई लेना देना नहीं रहेगा। आई बात समझे, इसी वजह से यह जो गुडविल है ऑलरेडी अपीयर्स, जो बताया मैंने बिफोर एडमिशन टू अशोक, ठीक है ना, 9000, तो 9000 वी हैव टू राइट ऑफ, आपको क्या करना है, उसको राइट ऑफ करना है थ्रू योर ओल्ड पार्टनर्स इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। आई बात समझे, ये एक बात ध्यान में रखना। देखिए अब इसको मैं राइट ऑफ कर रहा हूं, पहली एंट्री कर देना राइट ऑफ करके, ठीक है। तो कैसे करेंगे एंट्री राइट ऑफ, देखो कौन पार्टनर है, राम और रहीम, ठीक है, राम अकाउंट डेबिटेड, राम अकाउंट डेबिटेड, रहीम अकाउंट डेबिटेड, रहीम अकाउंट डेबिटेड टू गुडविल अकाउंट, गुडविल अकाउंट। आई बात समझे, राम अकाउंट डेबिट, रहीम अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। वैसे भी ख्याल में रखना, गुडविल बैलेंस शीट में एसेट साइड में होता है, तो गुडविल का जो बैलेंस रहेगा वो डेबिट बैलेंस रहेगा। आई बात समझे, ये तो आपको एक्सप्लेन करके बोल रहा हूं, उसको राइट ऑफ करना है। इसका मतलब क्या हुआ, वो अकाउंट अब नहीं रहेगा, मतलब ऐसा हुआ आफ्टर एडमिशन टू न्यू पार्टनर देयर इज नो गुडविल इन रिलेशन टू ओनली 9000, वो 9000 जो एग्जिस्टिंग गुडविल है वो राइट ऑफ हो गए। आई बात समझे, इन देयर ओल्ड शेयरिंग रेशियो दैट इज 5:4, ठीक है। तो गुडविल था 9000, ठीक है,
9000, यहीं लिख के देता हूँ मैं, 9000 इंटू 5/9, ठीक है, एंड 9000 इंटू 4/9। आई बात समझ है? ठीक है, तो 5000, ठीक है, एंड 4000, दैट इज 9000। ठीक है, नरेशन लिखना रहा, मुझे लिखना ही पड़ेगा। गुडविल रिटर्न ऑफ, गुडविल रिटर्न ऑफ, ठीक है, इन देयर रेशियो, ठीक है ना, यहाँ लिख सकते हैं आप इन देयर ओल्ड रेशियो और एग्जिस्टिंग रेशियो, दैट इज 5:4। आई बात समझे? ठीक है, अब सेकंड क्या हुआ, अशोक ही ब्रिंग गुडविल 5400 इन द फॉर्म ऑफ कैश। तो मैंने आपको इसके पहले बताया, कैश में अगर वो गुडविल लाता है कोई भी नया पार्टनर, तो बहुत ही आसान है, बैंक अकाउंट डेबिटेड, बैंक अकाउंट डेबिटेड, ठीक है, क्योंकि गुडविल कैश में लाया, डिपॉजिट में बैंक में करूंगा, इसलिए बैंक अकाउंट डेबिटेड टू गुडविल अकाउंट, टू गुडविल अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू गुडविल अकाउंट। उसने अमाउंट लाया था 5400, 5400, आपने नरेशन लिखना भी रहा तो अपन नरेशन लिखेंगे कि गुडविल ब्रॉट इन बाई, सिंपल बात है, किसने लाया, ठीक है ना, अशोक ने, ठीक है, डिपॉजिटेड इन बैंक, सो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू क्या हो जाएगा, कैश अकाउंट। आई बात समझे? सिंपल बात हो गए, थोड़ा ये हो गया गड़बड़। एक मिनट, ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू गुडविल अकाउंट। अब व्हाट एवर अमाउंट of goodwill brought in by that new partner immediately credited, ठीक है, in their, अभी देखो, in their old ratio, क्यों बोल रहा हूं मैं, क्योंकि इस मतलब एग्जाम्पल में न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इट इज नॉट गिवन। इन दिस प्रॉब्लम न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इट इज गिवन, दैट्स आई फाइंड आउट द सैक्रिफाइसिंग रेशियो, बट इन दिस प्रॉब्लम न्यू प्रॉफिट शेयरिंग नॉट गिवन, सो आई वांट टू क्रेडिटेड दैट गुडविल इन देयर ओल्ड रेशियो। सो हाउ आई कैन पास जर्नल एंट्री हियर, गुडविल अकाउंट डेबिटेड, goodwill account debited, goodwill account debited to Ram account, then to Rahim account, आई बात समझे, राम अकाउंट रहीम अकाउंट, ठीक है। अब उसको क्रेडिट करना है मुझे 5400, देन 5400, आई बात समझे। उनका रेशियो कौन सा है, 5:4, तो सिंपल बात है, इंटू 5/9, बराबर है, एंड 4/9, आई बात समझे। तो अमाउंट आएगा 3000, 3000, ठीक है, एंड 2400, एंड हियर इज 5400, आई बात समझे, ठीक है। ऐसा इसको सॉल्व करना है, आपको समझ में आया ही होगा, ठीक है, सिंपल है बिल्कुल। तो राम एंड रहीम, उनका रेशियो दिया था 5:4,
ठीक है ना, 5:, क्या बोला था उसने, 4। अब 5:4 में मैंने क्या किया, गुडविल को क्रेडिट कर दिया। ठीक है, देखो सिंपल बात है, राम रहीम, अशोक इज न्यू पार्टनर, ही ब्रिंग गुडविल 5,400, गुडविल ऑलरेडी अपीयर्स इन बैलेंस शीट। If means goodwill already appear in balance sheet at the time of admission of a partner, immediately write off in their old profit sharing ratio between existing partners. आई बात समझे? So Ram account debit, Rahim account debited to goodwill account. Then Ashok come in this partnership with a goodwill that is 5,400, means goodwill received to partners in the form of cash, so it is deposited in bank, so bank account debited to goodwill account. ठीक है, then whatever goodwill brings by that Ashok, immediately credited to existing partners in their old profit sharing ratio, that is Ram account debited, then Rahim account that is goodwill account debited to Ram account and Rahim account in their old profit sharing ratio. Narration लिख सकते हैं अपन, goodwill credited in their old profit sharing ratio. आई बात समझे? ठीक है, अभी देखिए, A and B both are the partners, their profit sharing ratio that is 3:2, and C is admitted. ठीक है, C is admitted 6,000 गुडविल। इसका मतलब क्या हुआ कि उसने 6,000 रुपये गुडविल लाया। ये तो मैंने अभी मतलब शॉर्ट में लिख के रखा है यहाँ पे और तैयार किया उसको। C is admitted, ठीक है, and come with 6,000 as a goodwill। ठीक है, goodwill already appears in balance sheet that is 2,000। ये बात ध्यान में रखना। आई बात समझे? दूसरी बात ऐसा है कि गुडविल शाल कंटिन्यू, मतलब ₹4,000। ठीक है, कंटिन्यू रखना है उनको गुडविल 4,000। ठीक है, सिर्फ यहाँ पे मैंने वो रेशो नहीं लिखा है, एक मिनट, (3:2) 3:2। यहाँ पे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो रहेगा 3:3:2। ठीक है, अभी देखें ये 2-3 प्रॉब्लम में क्या हुआ कि न्यू पार्टनर एडमिटेड फॉर व्हाट शेयर इट इज गिवन, बट इन दिस प्रॉब्लम ही इज एडमिटेड फॉर व्हाट शेयर इट इज नॉट गिवन, बट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इट इज गिवन 3:3:2। सो वी कैन इजीली फाइंड आउट दैट कि उसका शेयरिंग रेशियो कितना था या तो है। आई बात समझे? तो अभी देखो, सी एडमिटेड, सी को एडमिट किया आपने, ठीक है, और उसने गुडविल लाया था 6,000। ठीक है, ऑलरेडी अपीयर्स 2,000, पहले से मौजूद है गुडविल कितना, 2,000। अभी अपन क्या करेंगे, जो ऑलरेडी अपीयर्स ऐसा जो बताएं उसको अपन राइट ऑफ करवा देंगे। आई बात समझे? सो आई कैन पास जर्नल एंट्री गुडविल अकाउंट डेबिटेड, सॉरी गुडविल अकाउंट डेबिटेड ने, क्योंकि राइट ऑफ करना है। ए अकाउंट डेबिटेड, ए अकाउंट डेबिटेड, ठीक है, बी अकाउंट डेबिटेड, ठीक है, टू गुडविल अकाउंट, गुडविल अकाउंट। आई बात समझे? ठीक है, कितना था ऑलरेडी अपीयर्स इन बैलेंस शीट, दैट इज 2,000। ठीक है, तो 2,000 को अपन अलोकेट कर देते हैं 2,000। ठीक है, देखो 3:2 मतलब 3/5, ठीक है, और 2/5। आई बात समझे? 3/5, 2/5, ठीक है। यानी 1200, ठीक है, और 800, ठीक है, और गुडविल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा 2000। ये हो गया गुडविल राइट ऑफ। यहाँ पे नरेशन लिख सकते हैं आप लोग, गुडविल रिटर्न ऑफ, रिटर्न ऑफ।
आई बस इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ये एक बात ध्यान में रखना है आपने, ठीक है। दूसरा कैसा है अभी कि उसने ऐसे बताया था, न्यू पार्टनर जो सी था, ठीक है, उसने गुडविल लाया 6000, ठीक है, तो मैं एंट्री पास कर दूंगा अभी, गुडविल उसने लाया है तो, ठीक है। बैंक अकाउंट डेबिटेड, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू गुडविल अकाउंट, आई बात समझे, गुडविल अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू गुडविल अकाउंट, दैट इज 6000, 6000 बैंक अकाउंट डेबिटेड टू गुडविल अकाउंट 6000, ये बात समझ में आया ही होगा, ठीक है ना। अभी देखो ये लाया गुडविल उसने, तो मैंने आपको बताया था कि जैसे उसने गुडविल लाया तो इमीडिएटली क्रेडिटेड, ठीक है ना, इमीडिएटली क्रेडिटेड टू एग्जिस्टिंग प्रॉफिट, एग्जिस्टिंग पार्टनर, ठीक है ना, उनको दे देना है मुझे, वह गुडविल मुझे उनको दे देना है, ठीक है। हाउ यू कैन पास द जर्नल एंट्री, ठीक है, सो थिंक अबाउट दैट, गुडविल अकाउंट डेबिटेड, नंबर 3, गुडविल अकाउंट डेबिटेड, ठीक है ना, गुडविल अकाउंट डेबिटेड टू ए अकाउंट, ठीक है, टू बी अकाउंट, ठीक है, टू ए अकाउंट और टू बी अकाउंट, ठीक है। अभी लेकिन क्या हुआ, यहाँ पे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया है और ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग, इस वजह से मैंने बोला था आपको कि यहाँ पे आपको सैक्रिफाइसिंग रेशियो फाइंड आउट करना पड़ेगा, ठीक है, जैसे अपन ने फर्स्ट प्रॉब्लम में फाइंड आउट किया था, ठीक है। अभी देखो 6000 गुडविल, ये आपका गुडविल हुआ 6000, ठीक है। अब सैक्रिफाइसिंग रेशियो फाइंड आउट करना है, ओल्ड माइनस न्यू, तो अभी शॉर्ट में यहाँ पे कैलकुलेट करवा देता हूँ मैं ए के लिए पहले, ठीक है ना, ए के लिए, ठीक है। कैसे करेंगे फाइंड आउट, ओल्ड कितना है 3/5, आई बस समझिए 3/5 माइनस 3 + 3 6 8, ठीक है ना, मतलब 3/8, आई बात समझे। अब इसको मुझे सॉल्व करना है, तो आपको पता चला है 8 5 ज़ा 40, आई बात समझे 40, ठीक है, 8 3 ज़ा 24, ठीक है, 5 3 ज़ा 15, ठीक है, आई बात समझे, मतलब ये आएगा 9/40, आई बात समझे। वैसे इसके लिए फाइंड आउट करेंगे, बी के लिए 2/5, ठीक है ना, 3/8, आई बात समझे, ठीक है, यानी ये फिर से 40 आया, आई बात समझे, ठीक है। 8 2 ज़ा 16 माइनस 15, ठीक है, यानी अमाउंट आ जाएगा आपका 1/40, आई बात समझे, ठीक है, यानी आपका सैक्रिफाइसिंग रेशियो होगा 9:1, ये बात ध्यान में रखना, ठीक है ना। सिंपल हो गया, ओल्ड रेशियो 3/5, न्यू रेशियो 3/8, ठीक है, इसका प्रोडक्ट ले लेना, 8 5 ज़ा 40 आएगा, फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना, 8 3 ज़ा 24, 5 3 ज़ा 15, ठीक है, उसमें से उसको सब्सट्रैक्ट करो, 9 आ जाएगा, फिर 2/5 यह आपका ओल्ड था, आई बात समझे, ठीक है, और जो नया था वो 3/8 था, ठीक है, तो 8 5 ज़ा 40, 8 2 ज़ा 16, 5 3 ज़ा 15, तो देयरफॉर द न्यू मीन्स सैक्रिफाइसिंग रेशियो दैट इज 9:1, ठीक है। अब आपको यह गुडविल 9:1 में म्हणजे 9/10 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, और 6000 × 1/10, ऐसे इसको आपको डिवाइड करना है, ठीक है ना। यानी 5400, ठीक है, और यहाँ पे आएगा कितना 600, वह हो गए, आई बात समझे, इतना आसान है, ये बात समझ में आया होगा, ठीक है ना।
देखो फिर से अपन उसको देख लेंगे। देखो क्या बोला था मैंने, ए एंड बी आर द पार्टनर्स, देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दैट इज 3:2। सी इज एडमिटेड एज अ न्यू पार्टनर फॉर 6000 गुडविल, ठीक है, बट बिफोर दिस ऑलरेडी अपीयर 2000 एज अ गुडविल। गुडविल करके मतलब वहाँ पे है अभी भी, ठीक है ना, वो मैंने क्या करवा दिया, राइट ऑफ करवा दिया। आई बात समझे, उसको मैंने राइट ऑफ करवा दिया। राइट ऑफ करने के बाद जो गुडविल उसने 6000 लाया था, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू गुडविल अकाउंट दैट इज 6000, ठीक है, और जो गुडविल उन्होंने मतलब उसने लाया था वह गुडविल मैंने दोनों को क्रेडिट करवा दिया। ये एक बात ध्यान में रखना, ठीक है, वह क्रेडिट कर दिया। और दूसरा बात ऐसा है, अभी जो मतलब बताया मैंने सैक्रिफाइसिंग रेशो, क्योंकि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो दिया था इस वजह से, नहीं तो फिर तो कोई सवाल ही नहीं आ रहा है। आई बात सच है। अब वो क्या बोल रहा है, गुडविल शाल कंटिन्यू 4000। वो एडमिशन देने के बाद उन पार्टनर्स ने एक डिसीजन लिया, दे आर इंटरेस्टेड टू कंटिन्यू द गुडविल अकाउंट आफ्टर एडमिशन दैट इज 4000। अब वह बोल रहे हैं कि हम जो गुडविल अकाउंट है वो 4000 से शुरू रखना चाहते हैं। सो वी हैव टू रेज द गुडविल अकाउंट बाई 4000। सो गुडविल अकाउंट डेबिटेड, गुडविल अकाउंट डेबिटेड। आई बात समझे, गुडविल अकाउंट डेबिटेड टू, ठीक है, ए अकाउंट, ठीक है, टू बी अकाउंट और टू सी अकाउंट। अभी जो रेज करना एडमिशन के बाद, ठीक है ना, एडमिशन के पहले की बात नहीं, एडमिशन के बाद, तो तीनों अकाउंट के थ्रू रेज करना। आई बात समझे, और अमाउंट कितना, 4000। आई बात समझे, 4000, ठीक है, 4000। अब उनका रेशियो दिया था आपको 3:3:2, ठीक है, तो 4000 यही लिखवा देता हूं, 4000 इंटू 3/8। आई बात समझे, फिर से इंटू 3/8, ठीक है, फिर इंटू 3/2। आई बात समझे, ठीक है, एने 500, ठीक है, 5×3 1500, 1500, फिर से 1500। आई बात समझे, और यहाँ गलत हुआ, 2/8 लिखना चाहिए था मैंने, 2/8, 10। आई बात समझे, ठीक है, 3000 और एक 4000 रुपये, ठीक है। यहाँ पे लिख सकते हैं आप लोग नरेशन, गुडविल अकाउंट रेज्ड, ठीक है ना, गुडविल अकाउंट रेज, ठीक है ना, इन देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग, या तो बाय देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ये एक बात ध्यान में रखना, एक नया है, ख्याल में रखना, ठीक है। अब आगे है, ए एंड बी आर द पार्टनर्स, देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दैट इज 3:2 एंड ही इज एडमिटेड सी फॉर 1/4 शेयर, ठीक है ना, 8000 गुडविल। इसका मतलब ऐसा है कि उन्होंने गुडविल 8000 रुपये लाना है। किसने लाना है गुडविल, सी ने। आई बात समझे, हाफ ऑफ द गुडविल विड्रॉन बाय द ओल्ड पार्टनर्स। एक बात ध्यान में रखना, ठीक है। देखो अभी पहले क्या बोल रहा है वो, ए एंड बी, ठीक है, सी एडमिटेड फॉर 1/4 शेयर, और उन्होंने बताया कि कम अप विथ गुडविल दैट इज ₹8000। सो बैंक अकाउंट डेबिटेड, आपको पता ही हो गया अभी एंट्री क्या करना है, बैंक अकाउंट डेबिटेड। आई बात समझे, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू ए अकाउंट, टू ए अकाउंट एंड टू बी अकाउंट। आई बात समझे, ठीक है। अमाउंट लाया था उसने 8000, ये डायरेक्ट एंट्री हो गया, ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको वही पाथ बता देता हूं, टू गुडविल अकाउंट, गुडविल अकाउंट। आई बात समझे, 8000 वैसे भी कर सकते जैसे मैंने पहले लिखा था, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, ठीक। बीइंग गुडविल ब्राथ बाय सी इन टर्म्स ऑफ कैश, ठीक है, फॉर 1/4 शेयर।
ऐसा आप क्लियर कट नरेशन लिख सकते हो। और मैंने बताया जैसा ही गुडविल कैश में लाया तो क्रेडिट कर देना, ठीक है। तो एंट्री करूंगा मैं गुडविल अकाउंट, ठीक है ना, डेबिटेड टू, सिंपल है, एस कैपिटल अकाउंट और टू क्या, बीस कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अमाउंट है 8000 गुडविल का, यह आपको क्रेडिट करना है। उनका रेशियो दिया है 3:2, ठीक है। मतलब क्या हो जाएगा 8000 3/5, ठीक है, और 2/5। आई बात समझे, ठीक है। यानी 4800, ठीक है ना, और 3200, ठीक है। मतलब आप डायरेक्शन लिख सकते हैं, अमाउंट ऑफ गुडविल क्रेडिटेड टू ऑल पार्टनर्स इन देयर ऑल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ठीक है। अभी थर्ड क्या बोला था उसने, हाफ ऑफ द गुडविल विड्रॉन बाय द पार्टनर्स, उन्होंने पैसे निकाल लिया, विड्रॉल कर लिया। तो एंट्री करोगे आप लोग, ए अकाउंट डेबिटेड, आई बात समझे, ये इसका नरेशन लिखते आना ही चाहिए आपको। मैंने बताया आपको कि भाई अमाउंट ऑफ गुडविल क्रेडिटेड टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, आई बात समझे। अभी ये 1 हुआ, ये 2 और यह 3, आई बात समझे। एस कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, ठीक है, 20 कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, ठीक है, क्योंकि उन्होंने विड्रॉ किया। क्या किया उन्होंने, गुडविल विड्रॉ किया, निकाल लिया, मतलब उन्होंने पैसे निकाल लिए। सो ए अकाउंट डेबिटेड, बी अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट, ठीक है। 50%, देखो नरेशन लिखना भी रहा तो 50% अमाउंट, ठीक है ना, शॉर्ट में लिख रहा हूं, 50% अमाउंट ऑफ गुडविल विड्रॉन बाई पार्टनर्स इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो ऑलरेडी क्रेडिटेड 4800 एंड 3200, इसका 50% ले लीजिए और यहां लिखो, ठीक है ना, 2400, ठीक है, एंड 1600, आई बात समझे, यानी 4000, बस सिंपल हो गया, इतना उन्होंने निकाल लिया, आई बात समझे। तो अभी जो मतलब इफ गुडविल ब्रॉट इन, ठीक है ना, इन एग्जिस्टिंग पार्टनर, ठीक है, बाय न्यू पार्टनर इन टर्म्स ऑफ कैश, ये बात ध्यान में, कैश में अगर उसने गुडविल लाया तो आपने ऐसी ट्रीटमेंट करना है। मतलब जब अपन प्रॉब्लम शुरू करेंगे तो इसमें से कोई ना कोई एक कंडीशन आएगा कैश में जब वो गुडविल लाएगा, आई बात समझे, ये एक बात ध्यान में रखना, ठीक है। और दूसरा ऐसा इसमें कि अगर समझो गुडविल प्राइवेटली पेड बाय, मीन्स न्यू पार्टनर प्राइवेटली पेड कैश टू एग्जिस्टिंग पार्टनर, देर इज नो नीड टू पास द जर्नल एंट्री, ये एक बात ध्यान में रखना। बोलने का तात्पर्य मेरा ऐसा था, जैसे देखिए सिंपल है, ठीक है, ये ए और बी पार्टनर है, ठीक है, और ये सी नया पार्टनर है। अब इसको इन्होंने तय किया कि भाई हमें तू गुडविल 8000 पेड करवा दे, ठीक है। अब 8000 प्राइवेट यानी 4-4 हजार रुपए उनको दे देंगे, यह एंट्री बुक में कहीं नहीं दिखेंगे, 4-4 हजार रुपए वो पर्सनली ले लेंगे। प्राइवेटली पेड बाय, ऐसा शब्द प्रयोग रहेगा एग्जाम्पल में, प्राइवेटली पेड बाय, सो देयर इज नो नीड टू पास जर्नल एंट्री, ठीक है। while that amount brought in by C in terms of cash, that is not important, प्राइवेटली पेड कर दिया, इस वजह से एंट्री करने की कोई उसकी जरूरत नहीं। लेकिन कैश में जब वह गुडविल लाएगा और उस समय इतना आपको सोचना पड़ेगा, आई बात समझे, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको अगर उसने समझो कैश में गुडविल नहीं लाया तो फिर उसकी ट्रीटमेंट कैसे करना वह एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है ना। अब मेरा जो चैनल है, जो मतलब कॉमर्स जो स्टूडेंट हैं उनके लिए बहुत उपयुक्त है, और इस वजह से मैं ये चाहूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करिए। वो ये सही बात है कि मेरा उसमें फ़ायदा है कि मुझे लगेगा कि भाई कुछ स्टूडेंट्स मेरे वीडियोस लेक्चर्स देख रहा है, लेकिन आपको ऐसा लगेगा कि ट्यूशन जो है
इस कोरोना के वजह से ऐसा लगेगा आपको कि आपके घर में ही पढ़ाया जा रहा है, और हर एक चैप्टर में बहुत ही थरोली एक्सप्लेन करता हूँ और करूँगा ही, क्योंकि मेरा मकसद ही सिर्फ इतना है कि भाई स्टूडेंट्स को वह पूरा इन्फॉर्मेशन थरोली मिल जाए। इस वजह से आप उसको लाइक करना ना भूलें और सब्सक्राइब भी करो, और आपके जो भी फ्रेंड्स होंगे उनसे भी यह बात यानी शेयर करना आप लोगों ने, ठीक है।